Hello students, welcome to my channel. My name is Avinash. ଆଜି ଆମେମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଦେଖିବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର, that is chemical reactions and chemical equation। ତ ଆମେ ବହୁ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସବୁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ, କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, କଙ୍କାଳ ଇକ୍ୱେସନ୍ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଜି ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛେ। ଲୁଣରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା, ଦହି କେମିତି ହେଉଛି, ଏଟା ସବୁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ବହୁତ କିଛି ଖଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ସବୁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା କଥା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ତୁମେ ବିଚାର କର। କ୍ଷୀର ଦିନେ କ୍ଷୀରକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଜାଣିଛେ ଆମେ, ବୋଉମାନେ କହନ୍ତି କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡିଗଲା ବୋଲି। ତ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଲୁହା ତାୱା କଡ଼େଇ କଣ୍ଟା ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ, ବାହାରେ ଯଦି ଆମେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ତାୱା ପକାଇଦେବା କ'ଣ ହେବ? ତା ରଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଏ, କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଏ। କଳଙ୍କିଟା କ'ଣ? କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ। ଅଙ୍ଗୁର ଘରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପଚିଗଲେ ଅଙ୍ଗୁର ରହିକି ପଚିଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଲା ବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ରିଆକ୍ସନ୍? ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା ବେଳେ କେମିତି ହୁଏ? ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ କେଉଁଠୁ ଆସେ, କେମିତି ହଜମ ହୁଏ? ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲାବେଳେ କେମିତି ହୁଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି, କାର୍ବନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛି, ସବୁକିଛି ନା ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାସେସ୍ ଅଛି। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବେଳାରେ କେମିତି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛେ, କେମିତି ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମୂଳରେ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ଓ ନିଜସ୍ୱ ସତ୍ତାର କିଛି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ତ ନିଜର ସତ୍ତାର ବି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସ୍ତୁର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛୁ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଆମେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ତ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଲା ଯେ ମୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁଟା ସିଏ ଆଉ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ୱାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଭାଜିଦେଲେ ମାନେ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା, ପୁନର୍ବାର ସିଏ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେଉଥିବ। ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି ଘଟିଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆସ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ସତର୍କ ସୂଚନା କ'ଣ? ସତର୍କ ସୂଚନା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହାୟତାରେ କରିବା। ଆଉ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଖିର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଫ୍ଟି ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବ ଏକ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପତଳା ପାତକୁ ବାଲିକାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଲିକାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କର। ଏହାର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚିମୁଟାରେ ଧରି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣରରେ ଥିବା ସ୍ପିରିଟ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଳାଇ ଦିଅ ଏବଂ ପାଉଁଶକୁ ଏକ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ସଂଗ୍ରହ କର। ଆଖିଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରଖି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତକୁ ଜଳାଇବ। ଏହା କିପରି କରିବ? ଏହା 1.1ରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା କିପରି କରିବ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଆରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କେମିତି ଆମେ ଆକୁ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣରଟା ଜଳୁଛି, ଇଏ ହାତରେ ଏଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତଟା ଧରିଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତଟାକୁ ଜଳେଇଲା। ଜଳିଲା ପରେ ଦେଖ କେମିତି ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତଟା ଜଳୁଛି। ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତଟା ଜଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଏଠି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଜଳିକି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ସବଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଏଠି ଜଳିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏଇଠି ଧରିଥିଲା ଚିମୁଟାରେ, ଏଠି ଜଳେଇକି ତଳେ ପକେଇଲା, এইটা যে তলে রহিগলা এটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, দ্যাট ইজ MgO। Mg কোণ? ম্যাগনেসিয়াম। MgO হল ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড। তারপরে
तुम्हें कौन देखिल तुम्हें निश्चय देखुच जे मैग्नेशियम पात्रटी अति उज्ज्वल धला शिखा परी जलुची जलिला निहाती देखिले आम उज्ज्वल धला शिखा बेला जलिला एवं ताहा धला चूर्ण परिणत होईगला। यही धला चूर्ण होउची मैग्नेशियम ऑक्साइड। तो मैग्नेशियम जिते आम बर्न कले इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ताहले आमको कौन दउची मैग्नेशियम ऑक्साइड। यही धला चूर्ण होउची मैग्नेशियम ऑक्साइड। यह मैग्नेशियम और बायुरे थिबा ऑक्सीजन मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया हेतु सृष्टि हुए। बायुरे थिबा ऑक्सीजन संगे रासायनिक प्रतिक्रिया घटी मैग्नेशियम ऑक्साइड तैयारी हुए। चल कौन लिखी तुम कम एक परीक्षा मेल कि लेड नाइट्रेट जलीय द्रवण निय तहिरे पोटासियम आयोडाइड जलीय द्रवण मिसाओ तुम्हें कौन हो देख तुम कम 3 कौन ना एक कोनिकुलर फ्लास्क किंबा एक परीक्षा नली किसी जिंक दाना निय किछि लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक लघु सल्फ्यूरिक एसिड बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए मिसाओ। तो एठी जिंक दाना निहाई ता भितर लघु सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ए मिसाला। जिंक दाना संगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिसाला कौन हम जिंक दाना संगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिसेले कौन हम तुमको गोटे वीडियो माध्यम बर्तमान देखी दूची कौन हो देख एटा हूँ साइक्लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटा हूँ जिंक दाना ता भितर धीरे धीरे आम कौन करवा ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पकेबा देखिए कौन हो कौन हो पकौ देख धीरे धीरे सीटा बबल्स बाहर या भितर बबल्स बाहर देख बबल्सटा कौन ना यहाँ हाइड्रोजेन गैस ता भितर ये बाहरला कौन बाहरला ना हाइड्रोजेन गैस बाहरला। तेणु आम जिते बड़े जिंक दाना रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिसेले से कौन बाहरला ना हाइड्रोजेन गैस बाहरला। कौन कर एसिड को सावधान कर व्यवहार कर जिंक दाना चारि पाखे कौन घटुची देख देखिले कौन ना बबल्स बाहर क्लिनिकल फ्लास्क किंबा नली परीक्षा नलटी को स्पर्श कर यार तापमात्रा किसी परिवर्तन घटी कि ऊपर दिखाई तेणु तुमपाई काम तो ये तुमपाई काम दिखाई कौन ना रासायनिक समीकरण कौन अवस्थार परिवर्तन कौन रंगर परिवर्तन कौन गैसर निर्गमन तापमात्रार परिवर्तन कौन हुए तुम देखिए कौन है गैस बाहरला को गैस बाहरला ना हाइड्रोजेन गैस बाहरला। तो चतुर्पार्श्वर घटुवा विभिन्न परिवर्तन को लक्ष्य कले आम जापर जे विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया घटुची यही अध्याय सेगुड़िकर प्रतीकात्मक उपस्थापना करी से संबंध में आम आलोचना करवा। तो आम बर्तमान आसीगले रासायनिक समीकरण को रासायनिक प्रतिक्रिया कौन जापारे तो रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन। तो 1.1 रे जिते आम जिंक कौन करते मैग्नेशियम टाक जलते मैग्नेशियम ऑक्साइड बाहर यही भाव में वर्णना कर एक मैग्नेशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थित जाले ताहा मैग्नेशियम ऑक्साइड परिणत हुए वाक्य रूप में रासायनिक प्रतिक्रिया एहीपरी वर्णना अति लंबा हो जाउची। एहाकू एक क्षुद्र और संक्षिप्त रूप में लिखापी करने सबुठ सहज उपाय हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया को शब्द समीकरण में लिखा कौन लिखाई ये मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन एटा हूँ प्रतिकारक मैग्नेशियम ऑक्साइड उत्पाद लेफ्ट हैंड साइड रे बाम पटे जोटा रहा प्रतिकारक डाहाण पटे जोटा रहा हूँ कौन उत्पाद मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नेशियम ऑक्साइड। रासायनिक प्रतिक्रिया रे मैग्नेशियम और ऑक्सीजन रासायनिक परिवर्तन घटुची सेगुड़िक हूँ प्रतिकारक बा रिएक्टेंट जहाँ को आम नहीं रासायनिक प्रतिक्रिया तैयारी करुचे मैग्नेशियम ऑक्साइड एक नूतन पदार्थ उत्पन्न दैट इज प्रोडक्ट कहुए। तो उत्पाद आउ प्रतिकारक शब्द समीकरण में प्रतिकारक गुड़िक बाम पार्श्व लिखा जाए और उत्पाद गुड़िक डाहाण पार्श्व लिखा जाए। प्रतिकारक उत्पाद मध्य एक तीर चिन्ह दि जाए तीरटी बामरू डाहाण को दि जाए एवं यह रासायनिक प्रतिक्रियार एक दीर्घ निर्णय करे। ठीक अच्छे। तो रासायनिक प्रतिक्रिया एकाधिक प्रतिकारक थिले सेगुड़िक युक्त चिन्ह दि जाए से ही भली एकाधिक उत्पाद गुड़िक मध्य युक्त चिन्ह दि जाए। बर्तमान आम देखा रासायनिक समीकरण लिखा प्रणाली रासायनिक समीकरण आम केमी राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक अच्छे।
ତ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ अन्य किसी संक्षिप्त उपाय अच्छी कि आम जदि शब्द बदल प्रतिकारक उत्पाद गुड़िक रासायनिक संकेत व्यवहार कर लिखा ताले हाँ हम तेज रासायन समीकरण टी अधिक संक्षिप्त तथ्यपूर्ण और व्यवहार योग्य हो पार। तेणु एक रासायनिक प्रतिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा प्रकाश करा जाए। वायु उपस्थित में मैग्नेशियम पात्र प्रज्वलन प्रक्रिया को मन पकाओ। तो यही प्रतिक्रियार शब्द समीकरण को प्रतीक और संकेत व्यवहार कर समीकरण लिखा जा पार। Mg+O2 तीर चिन्ह MgO मैग्नेशियम प्लस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नेशियम ऑक्साइड। तीर चिन्ह बाम पार्श्व और दक्षिण पार्श्व प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या अलग अलग गणना कर एवं तुलना कर। परमाणु संख्या एटी Mg परमाणु संख्या 1 O2 2 एटी MgO 2। प्रत्येक मौलिक परमाणु संख्या तीर चिन्ह उपपार्श्व सामान अच्छी कि जदि सामान नहीं तेज समीकरणटी असमतुल्य अनबालान्सड कारण उभय पार्श्वर वस्तुत्व सामान नहीं। यह केवल प्रतिकारक उत्पादर सूचना देउथबार समीकरण को रासायनिक प्रतिक्रिया सूचक रासायनिक समीकरण बा स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहा जाए। वायु रे मैग्नेशियम प्रज्वलन पाई समीकरण एक सूचनीय समीकरण अटे। सूचनीय रासायनिक समीकरण अटे। ठीक अच्छे ताले एठी कौन देला समतुल्य रासायनिक समीकरण। बर्तमान यहाँ असमतुल्य थिला एटा समतुल्य रासायनिक समीकरण कौन अच्छी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नवम श्रेणी तुम पढ़ी वस्तुत्व संरक्षण नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मन पका। यही नियम अनुसार कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया वस्तुत्वर सृष्टि किंबा विनाश घटे नहीं। अर्थात कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पाद में मौलिकर मोट वस्तुत्व प्रतिकारक मौलिक गुड़िकर मोट वस्तुत्व सह निश्चय भाव में सामान हो कौन प्रकार लॉस हुए ना। अन्य प्रकार कहले प्रत्येक मौलिकर परमाणु गुड़िकर संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया पूर्व और रासायनिक प्रतिक्रिया पर सामान रहा। तेणु आमको सूचकीय रासायनिक समीकरण समतुल्य करने को पड़ो। रासायनिक समीकरण समतुल्य कि चल रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण को समतुल्य कर प्रणाली और सोपान गुड़िक देखा। 1.3 रासायनिक प्रतिक्रिया को सप्त समीकरण द्वारा दर्शाई पारे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यही शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण भाव लिखा जाई पारे। केमिति ना Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 ZnSO4 प्लस H2। वर्तमान तीर चिन्हर उभय पार्श्व थी प्रत्येक मौलिकर परमाणु संख्या को कल्पना करवा। ठीक अच्छे परमाणु संख्या को देखा कौन अच्छी Zn परमाणु संख्या 1 डाण पार्श्व परमाणु संख्या 1। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 डाण पार्श्व परमाणु संख्या 2। SO4 सल्फर परमाणु संख्या 1 सल्फर O4 ऑक्सीजन 4टा एटी भी ऑक्सीजन 4टा। ताहले एटा कौन अच्छी दुई पार्श्व परमाणु गुड़िकर संख्या सामान अच्छी। तेणु यहाँ गोटे हूँ समतुल्य समीकरण। देख ये से लिखाई मौलिक संख्या Zn 1 1 हाइड्रोजन 2 2 सल्फर 1 1 ऑक्सीजन 4 4। तेणु गोटे समतुल्य समीकरण उदाहरण है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ हूँ गोटे समतुल्य समीकरण। ठीक अच्छे जेहेतु तीर चिन्हर उभय पार्श्वर प्रत्येक मौलिक परमाणु संख्या सामान अच्छी तेणु यह एक समतुल्य समीकरण। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण समतुल्य करवा। बर्तमान गोटे रासायनिक समीकरण देती आम समतुल्य करवा। Fe प्लस H2 कि Fe3 प्लस H2। अच्छा देखिए कौन Fe अच्छी गोटे कि Fe गलानी 3टा। हाँ ये हाइड्रोजन अच्छी गोटे ये गलानी 4टा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन गोटे अच्छे ये 4टा हो गला। ये हाइड्रोजन जोड़े अच्छे जोड़े ठीक अच्छे कि ऑक्सीजन आउ Fe कौन फेरस कौन लुहार लैटिन नाम हूँ फेरस से तार संकेत बाहर Fe। तो रासायनिक समतुल्य समीकरण को समतुल्य करने प्रथम प्रत्येक संकेतर चतुर्पार्श्व बाक्स अंकन कर। समीकरण को समतुल्य करने सब बाक्स कौन सी परिवर्तन कर ना। देख Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। सोपान असमतुल्य समीकरण 1.5 रे थिबा कौन है ना Fe गोटे 3टा हाइड्रोजन को 2टा ऑक्सीजन गोटे
4टा एमती भाव में लिखा। तापर सोपान 3 रे कौन करवा देखिए कौन है साधारणतः अधिकांश क्षेत्र में समीकरण मध्य जो यौगिकर सर्वाधिक संख्यक परमाणु थाए से ही यौगिकर परमाणु को प्रथम समतुल करवा शुभजनक होता है। तेणु जार अधिका अच्छे प्रथम ताकू समतुलन करवा। यही यौगटी को प्रतिकारक कि उत्पादन हो पाए कौपटे भी एपटे हो पाए ना सेपटे हो पाए प्रतिकारक हो पाए ना उत्पादन हो पाए। यही यौगिकरू सर्वाधिक परमाणु थिबा मौलिक को बाछ ताकू प्रथम समतुल करने चेष्टा कर या अवलंबन कर यौगिक Fe3O4 और ए मौलिक ऑक्सीजन O को आम बाछा कहीं ऑक्सीजन 4टा हो जाए गोटे थी एपटे 4टा सब अधिक अच्छे ऑक्सीजन ना ऑक्सीजन को नवा दक्षिण पार्श्व 4टी ऑक्सीजन परमाणु और बाम पार्श्व मात्र गोटे ऑक्सीजन परमाणु अच्छी। अच्छा वर्तमान ऑक्सीजन परमाणु को समतुल करवा आरंभ में H2O 1H2O थिला 4 Fe3O4 ठारे तो समतुल करने को 1 × 4 करदे H2O रे 4 गुणीदे ये 4 को 4 अच्छी उत्पादन हाँ तो ये H2O माने ऑक्सीजन ने ये ऑक्सीजन ने आम ये कौन करवा ना 4 गुणीदे ठीक अच्छे। मन रखिए हे परमाणु संख्या को सामान करने रासायनिक प्रतिक्रिया सहित संपृक्त यौगिक और मौलिक संकेत को जहाँकि बाक्स भितर अच्छी आम परिवर्तन करें। उदाहरण स्वरूप ऑक्सीजन परमाणु समान संख्यक परमाणु संख्या को सम्मान करने आम H2O पूर्व 4 गुणा को 4H2O भाव में लिखिपर किंतु H2O4 बा H2O4 एमती लिखिपर ना 4 पटे ये गुणी पार माने 4 × 2 = 8 4 की 4 एमती हम Fe + 4H2O Fe3O4 + H2 माने 4 × 2 = 8 हो गला ये 4 के 4 हो गला ऑक्सीजन ये 4 हो गला किंतु हाइड्रोजन केतरा हो गला 8टा हो गला। वर्तमान देखिए नेक्स्ट कौन कर सोपान 4 वर्तमान सुधा Fe + OH रो परमाणु समतुल नहीं कौन है ये 8टा हो गला ये 4टा Fe केतरा 3टा अच्छे एपटे गोटे अच्छी कौन करवा ये हाइड्रोजन को बर्तमान करवा हाइड्रोजन 8टा हो देख ये कौन कर बर्तमान हाइड्रोजन टाक 8टा कला 2H2 कौन कला 2H2 करदेला एपटे ये 8टा है एपटे 2H2 करदेला H2 2 गुणीदेला 8 ये 2 जो 8 तेणु ये कौन करदेला 4H2 करदे ये होगा 4H2 4 × 2 = 8 ये H2 थिला ये 4H2 आपको करदेला ये होगा 4 × 2 = 8 आउ बाकी कोटा रहा ना Fe ये 3 अच्छी ये Fe गोटे अच्छी ये गोटे 3टा गुणी देले 3Fe करदे कौन कर ऊपर समीकरण लक्ष्य कर एथर तृतीय मौलिक टी बाछ समतुल होना कोटा कि ना एफिटा समतुल होना कौन कर ना ये Fe 1 अच्छी 3 गुणी दियो 3Fe3O4 3 कर दियो 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2 वर्तमान कौन आसीगला सर्वशेष में आम समीकरण उभय पार्श्व मौलिक गुड़िक परमाणु संख्या को टाणी समतुल समीकरण टी सठिकता जांच कौन करवा उभय पार्श्व मौलिक गुड़िक परमाणु संख्या को सामान होना देखा वर्तमान समीकरण समतुल हो जाए 3Fe Fe3 3 4H2 8 4H2 ये 8 O4 मान 4टा ऑक्सीजन ये भी 4टा ऑक्सीजन बर्तमान कौन हो समीकरण टी बर्तमान समतुल हो जाए। समीकरण समतुल करने प्रत्येक सोपान एक निर्दिष्ट मौलिक परमाणु संख्यक उभय पटे सामान कर अंतिम सोपान समतुल प्रक्रिया संपन्न हो समतुल कर पद्धति को परख निरीख हिट एंड ट्रायल पद्धति बोली कहुए। तो यही पद्धति को हिट एंड ट्रायल बोली कहुए। भौतिक अवस्था प्रतिकर सूचना आम नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा।